Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Now, let's start with the first chapter, Freedom at Midnight. The chapter is an excerpt from a book with the same title, Freedom at Midnight, written by Larry Collins and Dominic Lapierre. So, let's discuss the title first. The title Freedom at Midnight refers to the time India got freedom from British rule. We got this freedom at the midnight of 14th August 1947. So हमें ये आज़ादी 14 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली थी. As our Prime Minister Jawaharlal Nehru had said during his speech, at the stroke of midnight hour when the world sleeps, India will awake to light and freedom. So now let's discuss something about the chapter first. The chapter tells the story of two characters, Bhuta Singh, a 55-year-old Sikh, and Zainab, a 17-year-old Muslim girl. Both of them get married under very unusual circumstances and have a daughter also, but then they get separated and the story has a very tragic ending. So before reading the chapter thoroughly, let us discuss the historical events that form the basis of this story. So वो ऐतिहासिक घटनाएं जो कि इस कहानी का आधार हैं. So पहले उनको डिस्कस करते हैं. So as we all know, India attained freedom on 15th of August 1947. But with that came the partition of the country. Another country named Pakistan was carved out of India. With that, Muslims of India started migrating to Pakistan and Hindus and Sikhs started migrating to India. The common people suffered a lot as they had to leave their homes behind and cover long distances. The problem started when this exchange of population did not remain peaceful. The caravans or columns were attacked and looted in both the countries. People were killed in large numbers, and who suffered the most during all this? As is always the case, women were the soft target. It is estimated that between 75,000 to 1 lakh women were kidnapped during those days. Many of them were raped and had to undergo a lot of suffering. So then gradually people started settling down after the partition. Even the abducted women had started adjusting with their surroundings. Some of them had got married in the local families and even had children now. So, but then something happened again. As both the governments started holding meetings on the issue of abducted women from both sides. In 1949, an act was passed and it was decided to exchange the abducted women, and the marriages of women after March 1, 1947 were not recognized. So the government was to decide as to who was a kidnapped woman. So चाहे कोई औरत खुद भी कहती थी कि नाउ आई एम मैरिड, आई हैव चिल्ड्रन ऑल्सो एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू गो बैक, पर उसकी एक भी सुनी नहीं जाती थी और उनको जबरदस्ती वापस भेजा जाता था. So this operation went on for 9 years and a big number of women again were uprooted and they suffered a lot. So these are the pictures of the camps where they were kept temporarily before being sent to Pakistan. So all these are abducted women. So just see the tragedy of those times. So in the story also that we are to read, we see Zainab being sent back to Pakistan. Though several years have passed and she has a daughter also, she is sent back to Pakistan. Now let's start the chapter. So now let's start with the reading of the chapter Freedom at Midnight, written by Larry Collins and Dominic Lapierre. So Larry Collins was an American journalist and a writer, and Dominic Lapierre was a French journalist and a writer, and both had collaborated and written some books, and Freedom at Midnight was one of them, and it was written by both of them in 1975.
So now let's start with the reading, and we'll start with the first paragraph. Butta Singh, a 55-year-old Sikh veteran of Mountbatten's Burma campaign, was working his fields one September afternoon when he heard a terrified scream behind him. So it was the time of afternoon, and it was the time of September 1947. And Butta Singh was working in his fields. We are introduced to Butta Singh in the very first sentence. Butta Singh was a 55-year-old Sikh, and he was a veteran of Mountbatten's Burma campaign. So वो एक फौजी था. So veteran का meaning ये क्या होता है? A soldier who has particularly participated in a war. So he had taken part in the Burma campaign that was led by Lord Mountbatten. So इसने अंग्रेज़ी फ़ौज में, इसने जब भारत गुलाम था तो इसने सर्व किया था एज अ सोल्जर, एंड नाउ ही वॉज रिटायर्ड. और अब वो अपनी खेती करता था. सो वो अपने खेतों में काम कर रहा था जब उसको एक अपने पीछे चीख सुनाई दी, जिससे कि पता चल रहा था दैट जिसने भी वो चीख मारी है, दैट पर्सन इज़ वेरी मच टेरिफाइड, फ्राइटन, बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ है पर्सन जिसने भी वो चीख मारी है. ही टर्न टू सी अ यंग गर्ल. सो जब वो पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा कि एक यंग लड़की है, परसूट बाय अ फेलो सिख, जिसके पीछे पीछे एक और सिख भाग रहा है, रशिंग टूवर्ड हिम, और वो लड़की बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी. द गर्ल थ्रू हर सेल्फ एट बूटा सिंह बेगिंग, सेव मी सेव मी. सो लड़की ने एकदम बूटा सिंह के पास आई और उसने उसको क्या कहा कि मुझे बचाओ. नेक्स्ट पैरा. ही स्टेप बिटवीन द गर्ल एंड हर कैप्टर. सो बूटा सिंह उसी टाइम पर दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया. ही अंडरस्टूड इंस्टेंटली वॉट हैड हैपन्ड. और उसको एकदम से देखकर उसको सिचुएशन समझ में आ गई, क्योंकि उस समय टाइम ही ऐसा चल रहा था. सो वो समझ गया दैट द गर्ल वॉज अ मुस्लिम, कि ये पक्का मुस्लिम लड़की है. whom the Sikh had seized from a passing refugee column. सो उसको समझ आ गई कि ये लड़की एक काफिले में चल रही थी, मुस्लिम थी, पाकिस्तान की तरफ जा रही थी. देश का बंटवारा क्योंकि हो रहा था, सो वो पाकिस्तान की तरफ जा रही थी जब उसके काफिले पर अटैक हुआ और उसको ये सिख वहाँ से उठाकर लाया था. अब कॉलम हम किसको कहते हैं, क्योंकि वो पासिंग रिफ्यूजी कॉलम में जा रही थी. सो कॉलम सिंपली इज़ अ लाइन ऑफ द पीपल हु आर लीविंग अ कंट्री. सो जब कोई एक लाइन में लोग चल रहे होते हैं, काफिले चल रहे होते हैं, सो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कॉलम कहते हैं. सो उस समय ये बहुत कॉमन था, लोग कॉलम्स में चलते थे, इकट्ठे होकर लाइन में चलते थे, और बहुत बार उनके काफिलों पर हमला किया जाता था. एंड दिस वाज हैपनिंग बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन पाकिस्तान. सो वो समझ गया कि उस लड़की को काफिले में से उठाकर वो सिख लेकर आया है. This wholly unexpected intrusion of the province's miseries upon his plot of land offered Butta Singh a providential opportunity. So जो बूटा सिंह के प्रांत के लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस समय दुख तकलीफ उठा रहे थे, पर जैसे उनकी दुख तकलीफ में से बूटा सिंह के लिए एक रास्ता निकल कर आया, जैसे उसको एक बहुत ही भाग्यशाली मौका मिला. और वो मौका क्या था, देखो, टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम मोस्ट ऑप्रेसिंग हिम हिज ओन सॉलिट्यूड. सो उसको लोगों की दुख तकलीफ में से क्या मौका मिला, अपनी एक बहुत बड़ी समस्या सुलझाने का. और वो समस्या क्या थी, उसका अकेलापन, क्योंकि वो ही वॉज अनमैरिड. सो ही वॉज अ शाई मैन हु हैड नेवर मैरिड. सो वो एक शर्मीला व्यक्ति था जिसकी की शादी नहीं हुई थी. फर्स्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिलीज इनएबिलिटी टू परचेज हिम अ वाइफ, देन बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल टिमिडिटी. सो शुरू में तो परिवार गरीब था, उसकी शादी नहीं कर पाया, पर बाद में क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मीला था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकी. हाउ मच ही आस्क्ड द गर्ल्स कैप्टर. सो जैसे ही उसने सिचुएशन देखी, उसने सीधा ही जो उस लड़की का जिसने उस लड़की को बंदी बनाया था, उसको, उस सरदार को उसने क्या पूछा कि कितने. 1500 रुपीज़ वॉज द आंसर. और उसने आगे से व्यक्ति ने क्या कहा, 1500 रुपये. सो हमने क्या देखना है कि उस टाइम में 1500 रुपीज़
ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। बूटा सिंह डिड नॉट इवन बार्गेन, सो बूटा सिंह ने इवन मोल भाव भी नहीं किया। ही वेंट इनटू हिज हट एंड रिटर्न्ड विद अ सॉइल्ड पाइल ऑफ रुपी नोट्स। अपनी हट में गया और जाके वो काफ़ी सारे रुपए उठाकर ले आया, एक ढेर रुपयों का उठाकर ले आया जो कि बहुत मैले कुचैले थे, क्योंकि वो उसकी सारी उम्र की कमाई थी जो उसने उसको दे दी। द गर्ल whom those बैंक नोट्स परचेस्ड was 17 years old, 38 years his junior. सो जिस लड़की को उसने खरीदा था वो 17 ईयर्स की थी और उससे 38 ईयर्स छोटी थी। Her name was Zainab. She was the daughter of sharecroppers in Rajasthan. So उसका नाम जैनब था और वो राजस्थान में मूल रूप से रहने वाली थी, मुस्लिम परिवार को बिलोंग करती थी। और अब इस समय वो पंजाब के रास्ते से वो किधर की तरफ जा रहे थे, बंटवारे में वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। सो शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? जो कि छोटे किसान होते हैं। सो उनकी लड़की थी। टू द लोनली ओल्ड सिख she became a kind of adorable plaything, half daughter, half mistress, a wondrous presence who completely disrupted his life. So वो बूटा सिंह के साथ रहने लगी और उसके लिए वो एक किस तरह की एक व्यक्ति थी जिसने कि उसके जीवन को पूरी तरह से उलट पलट कर रख दिया। बिकॉज शी वॉज ऑलमोस्ट द एज ऑफ हिज डॉटर इफ ही हैड वन, एंड वो उसकी प्रेमिका भी थी। द अफेक्शन ही हैड नेवर बीन एबल टू बिस्टो बर्स्ट ओवर जैनब इन अ फ्लड टाइड। सो जो वो प्यार अब तक किसी को नहीं दे पाया था क्योंकि वो अकेला रहता था, वो जैनब के ऊपर लुटाने लगा। एवरी अदर डे बूटा सिंह वॉज ऑफ टू द नियरेस्ट बाजार टू बाय हर सम बॉबल, a साड़ी, a bar of soap, a pair of embroidered slippers. So हर दूसरे दिन बूटा सिंह बाजार जाता था। उसके लिए कभी तो वो नकली ज्वेलरी लेकर आता था, बॉबल लेकर आता था, कभी साड़ी, कभी साबुन, और कभी वो उसके लिए पंजाबी जुत्ती लेकर आता था जो कि जिस पर की कढ़ाई की होती थी। To Zainab, who had been beaten and raped before her flight, the compassion and tenderness poured out to her by the lonely old Sikh who had purchased her for 1500 rupees was as overwhelming as it was unexpected. So Zainab के लिए ये सब कुछ बहुत ही अचंभित करने वाला था क्योंकि उसने इंसानों का बहुत ही बुरा रूप देखा था। बिकॉज वहाँ से भागने से पहले, फ्लाइट का मतलब ही क्या है कि वो कैद में से भागी थी। सो किसी ने उसको अगवा किया हुआ था, एंड शी हैड बीन रेप्ड ऑल्सो एंड शी हैड बीन बीटन ऑल्सो। उसको बहुत पीटा गया था, उसको रेप किया गया था। सो उसके बाद ही वो भागने में सफल हुई थी, पर उसने सो इंसानों का बहुत ही बुरा रूप देखा था। सो जब उसने बूटा सिंह की कंपैशन देखी, उसकी हमदर्दी देखी, और जिस तरह से वो बहुत ही जेंटली उसके साथ पेश आता था, तो वो इसके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी और वो बहुत ज़्यादा उसके एहसानों के तले थी। Inevitably, her response was a grateful affection to the man who had saved her, and she quickly became the pole around which Butta Singh's life turned. So, inevitably means कि जैसा कि स्वाभाविक था, नेचुरली उसका जो रिस्पॉन्स था बूटा सिंह के प्रति वो क्या था, वो भी एक अफेक्शन थी, प्यार था, क्योंकि बूटा सिंह ने उसको बचाया था। सो इस तरह से वो बूटा सिंह के जीवन का जैसे उसका एक धुरा बन गई जिसके आसपास बूटा सिंह का जीवन घूमने लगा। शी वॉज विद हिम इन हिज फील्ड्स ड्यूरिंग द डे, मिल्क्ड हिज वाटर बफलोज एट सन अप एंड सन डाउन। सो सन अप क्या है? सूरज चढ़ने पर और सूरज डूबने पर वो क्या करती थी, उसकी बफलोज, उसकी जो भैंसें थी उनसे दूध लेती थी और उनका ख्याल रखती थी। ले विद हिम एट नाइट 16 miles from their hut, the wretched tides of the refugees flowed up and down the Grand Trunk Highway. और वो इस तरह का जीवन दोनों बिता रहे थे जबकि उनके घर और खेत से 16 मील की दूरी पर
जो रिफ्यूजीज थे उनका आना जाना लगा हुआ था। सो रेस्ट क्या होता है, बहुत ही बुरे हालों में बेचारे लोग। सो वो ग्रैंड ट्रंक हाईवे, क्योंकि जीटी रोड से बूटा सिंह के जो खेत थे या उनका जो गांव था वो 16 मील की दूरी पर था। सो यहाँ पर जैसे वो दुनिया से बहुत दूर थे, पर सिर्फ 16 मील की दूरी पर जीटी रोड थी और वहाँ पर उसी तरह से लोगों का, बड़ी गिनती में बेचारे लोगों का, जो बदनसीब लोग थे उनका हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना जारी था। नेक्स्ट पैरा, वन डे दैट फॉल well before the dawn, as Sikh tradition dictated, a strange melody of flutes advanced down the road to Butta Singh's house. So फिर एक दिन क्या हुआ, जब पतझड़ का समय था तो सुबह से भी पहले, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, तो अब वो क्या दिखाने लगे हैं कि बूटा सिंह और जैनब की शादी हो गई एज पर सिख ट्रेडिशन, सिख रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों की शादी की गई। सो बूटा सिंह के घर में ही जैनब रहती थी, इसलिए बारात बूटा सिंह की अपने घर में आई और पूरे बाजों के साथ वो आ रही थी। सराउंडेड बाय सिंगर्स एंड नेबर्स कैरिंग स्पटरिंग टॉर्चेस। सो बूटा सिंह के आसपास कौन चल रहे थे, गीत गाने वाले और उसके पड़ोसी थे, और उनके हाथों में मशालें थी क्योंकि अभी सूरज नहीं उगा था। एस्ट्राइड अ हॉर्स, एस्ट्राइड अ हॉर्स मीन्स कि बूटा सिंह एक घोड़े पर सवार था। हार्नेस्ड इन वेलवेट एंड बैंगल्स। सो उस हॉर्स को बहुत सजाया हुआ था मखमली कपड़े से और चूड़ियों से। बूटा सिंह रोड अप टू द डोर स्टेप ऑफ हिज ओन होम टू क्लेम द लिटिल मुस्लिम गर्ल एज हिज ब्राइड। सो बूटा सिंह अपने घर में अपनी बारात लेकर आया। Next para, a guru bearing the Granth Sahib, the Sikh holy book, followed him into the house where Zainab waited, trembling in the new sari he had bought her. So एक सिख गुरु, अब गुरु का यहाँ पर मतलब क्या है, जो कोई गुरुद्वारे का ग्रंथी था वो लेकर आया अपने साथ ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की पवित्र किताब है। सो वो लेकर, वो बूटा सिंह के घर में वो ग्रंथी वो किताब लेकर आया, जहाँ पर कि जैनब इंतज़ार कर रही थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो बूटा सिंह ने उसको खरीद कर दी थी। रेडियंट विद हैप्पीनेस, हिज हेड कवर्ड इन अ न्यू स्कारलेट टर्बन। सो बूटा सिंह का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसने लाल रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। बूटा सिंह स्क्वाटेड बिसाइड जैनब ऑन द फ्लोर ऑफ हिज हाउस। सो बूटा सिंह जैनब के साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया। The priest explained to them the obligations of married life. So जो गुरुद्वारे का जो ग्रंथी था उसने इनको बताया कि शादी की क्या क्या कर्तव्य हैं, मैरिड लाइफ में क्या कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो कि हमने निभानी है। Then with the gathering intoning his phrases after him, he read from the sacred text. और फिर उसने गुरु ग्रंथ साहिब में से सेक्रेट टेक्स्ट, पवित्र किताब में से उसने पढ़ना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे जितने भी लोग वहाँ बैठे थे वो भी उसके पीछे पीछे वो बानी को बोल रहे थे। नेक्स्ट पैरा, व्हेन ही हैड फिनिश्ड बूटा सिंह स्टूड अप एंड क्लच्ड वन एंड ऑफ एन एम्ब्रॉयडर्ड सैश। सो जब ग्रंथी ने पाठ करना जब उसने ख़त्म किया तो बूटा सिंह खड़े हो गया और उसके हाथ में एक एम्ब्रॉयडर्ड सैश थी। सो सैश क्या होता है, एक नैरो कपड़ा जो कि ज़्यादा चौड़ा ना हो, सो जिसको कि हम पल्ला कहते हैं। सो उसके हाथ में उसका एक सिरा था, उस पल्ले का एक छोर था। जैनब क्लच्ड द अदर, और जैनब ने उसी पल्ले का दूसरा छोर पकड़ा हुआ था। 4 times जैनब फॉलोड हिम इन लावास। सो वो क्या कर रहे थे, वो लावा ले रहे थे, फेरे ले रहे थे। सो जैसे कि सिख ट्रेडिशंस में गुरु ग्रंथ साहिब के इर्द गिर्द 4 सर्कल्स काटने होते हैं, 4 लावें लेनी होती हैं, 4 फेरे लेने होते हैं, तो वही उन्होंने किया। 4 times जैनब फॉलोड हिम इन लावास 4 mystic circumambulations of the holy book. So circumambulation simply means circles. So उन्होंने 4
फेरे लिए। एट द इंस्टेंट द फोर्थ सर्कल वॉज ज्वाइंड दे वर मैरिड। और जैसे ही चौथी जो लाभ थी, जो चौथा फेरा था वो ख़त्म हुआ तो वो उनकी शादी हो गई। आउटसाइड द सन ऑफ अनदर डे रोज ओवर देयर फील्ड्स। सो इट वॉज अ वेरी शॉर्ट सेरेमनी, क्योंकि उसके बाद सूरज उसके बाद होगा। नेक्स्ट पैरा देखो। A few weeks later, the season that had brought so much of horror and hardship to his fellow Punjabis bestowed a last gift on Boota Singh. So कुछ हफ्तों के बाद बूटा सिंह को एक और अच्छी खबर मिली, और वही समय जो कि बाकी पंजाबियों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें लेकर आया था, बहुत ज़्यादा मुसीबतें लेकर आया था, उसी समय ने जैसे बूटा सिंह को एक और तोहफा दिया। और वो क्या था? हिज वाइफ अनाउंस दैट शी वॉज बेयरिंग द एयर ही हैड डिस्पेयर्ड ऑफ एवर हैविंग। क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको क्या बताया कि शी वॉज कैरिंग। सो बेयरिंग द मतलब क्या है बेयरिंग का? कैरिंग, CARRYING। एयर क्या होता है? वारिस। सो हिज वाइफ अनाउंस दैट शी वॉज बेयरिंग द एयर ही हैड डिस्पेयर्ड ऑफ एवर हैविंग। सो उसकी वाइफ ने उसको क्या बताया कि वो उसका वारिस कैरी कर रही है, जो कि बूटा सिंह ने जिसकी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि ही हैड बीन अनमैरिड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो कभी उसका भी अपना जो चाइल्ड है वो होगा। इट वॉज एज दो सम स्पेशल प्रोविडेंस हैड सिंगल्ड आउट द एल्डरली सिख एंड द मुस्लिम गर्ल फॉर इट्स ब्लेसिंग। सो ऐसे लगता था जैसे कि कोई ये दोनों जने खास किस्मत ही लेकर आए हैं। दैट वॉज नॉट द केस। पर अब हमें राइटर्स क्या बताते हैं, एक हिंट देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा था पर ऐसा नहीं था। फॉर दैट अनलाइकली कपल अ लॉन्ग एंड क्रूअल ऑर्डियल विच वुड वन डे बिकम फॉर मिलियंस द सिंबल ऑफ द एविल्स ऑफ पार्टीशन वॉज सून टू बिगिन। क्योंकि इस कपल के लिए, जो कपल अनलाइकली था, अनलाइकली का मतलब क्या है? जिनका कि आपस में कोई जोड़ नहीं था, बिकॉज ही वॉज 55, शी वॉज 17, ही वॉज अ सिख एंड शी वॉज अ मुस्लिम। सो वो एक बहुत ही इस तरह का कपल था जो कि आम लाइफ में तो शायद ये कभी एक दूसरे के सामने भी ना आते, पर अब लाइफ ने उनको उनको एक टाई में बांध दिया था। पर इस अनलाइकली कपल के साथ राइटर हमें क्या कहते हैं कि एक बहुत ही भयानक समय उनके लिए आने वाला था, जिससे कि उनका जीवन एक तरह से दूसरी आने वाली लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा, कि एक उदाहरण बन जाएगा उनका जीवन कि पार्टीशन कितनी बुरी थी। सो एक यहाँ पर हमें राइटर्स हिंट दे रहे हैं कि आगे उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। नेक्स्ट पैरा देखो। 11 months after their marriage, a daughter was born to Boota Singh and Zainab. The wife he had purchased for 1500 rupees. So उनकी शादी के 11 महीनों के बाद उनके घर में एक बेटी हुई। और following Sikh customs, Boota Singh opened the Sikh holy book, the Granth Sahib, at random and gave his daughter a name beginning with the first letter of the word he found at the top of the page. So फिर जिस तरह की सिखों में नाम रखा जाता है, किस तरह से रखा जाता है कि ग्रंथ साहिब को किसी ग्रंथ साहिब का कोई भी पन्ना खोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब क्या? नॉट प्लान्ड, कि कोई भी पन्ना निकल आए, उसमें जो पेज के ऊपर सबसे पहला अक्षर होता है उसका, उसी से बच्चे का नाम रखा जाता है। सो जो पहला शब्द होता है उस पन्ने का, और शब्द का पहला जो अक्षर होता है उसी नाम से बच्चे का नाम, उसी अक्षर से बच्चे का नाम रखा जाता है। सो वो क्या था? वो टी था, तो उन्होंने टी से ही बच्चे का नाम रखा। द लेटर वॉज अ टी एंड ही चोज तनवीर, मिरेकल ऑफ द स्काई। सो उसने अपने बच्चे का, अपनी बेटी का नाम तनवीर रखा, जिसका कि मतलब क्या है? आकाश का अजूबा। We end this lecture here. In the next lecture, we'll be finishing this chapter. Thank you.